everyone. How are you guys doing? I welcome you to the combined platform of Infinity Vision, Vision IAS, and Galaxy classes. I hope you are taking good care of your health, and when I say health, I mean physical health, mental health, and academic health. Talking about physical health, I will be more than happy if you guys are exercising daily, at least for 30 minutes, and if you're not doing, please start doing that, because if you start doing exercise for at least 30 minutes, that will help you sweat. And when your body starts sweating, it generates BDNF, which is like brain-derived neurotrophin factor, which helps you not only increase the metabolism rate of your body, but also help you fight the stress ahead. Other aspect of your physical health should be, you should be taking good food. I'm sure your parents and your guardians, whoever you are living with, they are providing you right amount of food with high immunity booster, and take good care of sleep as well. When I talk about mental health, we all are under a lockdown scenario, and it's a right time to pursue what we really love. So it's a right time to pursue our hobbies. Like if you love painting, you should start painting. If you love dancing, you should dance a bit. If you love writing and reading, you read a lot. And it's also a right time to develop some skill sets. Like if you really want to learn something, like if you want to learn guitar, if you want to learn music, if you want to learn painting, it's a right time to develop the right skill that will really help you boost your confidence, and that will help you make you feel really, really good. And the last but not the least, that is your academic health. And when I talk about academic health, I do not only mean your school education. Of course, you have to take care of your school education. Apart from that, it's a very, very right time to do a little bit of academic research. Let's say we all are under a lockdown scenario. Do we really know exactly what coronavirus is? Have we really researched on it? Do we really know how human bodies respire? When I say a human body respire, do you really know what's the mechanism which happens inside your body? What happens to your diaphragm? How the air enters your nostril and how it goes to the bronchioles and alveoli? How the gas exchange takes place? Do you really know that? Do you really know what is this ventilation is? Why there is so much fuss about this mechanical ventilation? What's the story of ventilation? So it's a right time to engage in these type of research, in these type of academic research, so that you know how things develop, how things can be mastered. And the third aspect of your academic life is your competitive exams. I'm sure many of you must be preparing or must have appeared in many of your Olympiad exams at school level, at district level, at national level. And when I talk about competitive exams, one of the most famous and one of the oldest and one of the most reputed exam, that is National Talent Search Examination. And today we are going to talk about National Talent Search Examination, which abbreviated as NTSE. So before I begin the session, let me give you a brief outline of what we are going to do today. In first section, we are going to talk about what is NTSE, why do we have to appear in this exam, why this exam commands such a huge respect, and why there is so much halla gulla about this exam, how NTSE scholars are selected. That is the first section of the talk, that what, why, and how of NTSE. In the second part of the talk, we are going to talk about how NTSE scholars are made, what it takes to become a NTSE scholar. We'll be talking a lot of preparation strategies there, what motivations you need to have, and what exactly makes you different and makes you crack this exam. After that, I will be giving you a forest view of what NTSE exams papers are, how to handle these subjects, how to prepare these subjects, what should be your mantra for grasping the whole chapters and cracking the exam. And then I'll be talking about the various stages of learning components.
like what stages of learning will really help you crack this exam. After that, I'll set the stage open for our amazing experts from Vision IAS. Vision IAS, as you already know, is one of the biggest player in the field of civil services. I'm sure many of you must have heard this name, Civil Services Examination, which is conducted by UPSC. And if you have not heard this exam, I'm sure you must have heard or many of the people or friends or family in your members in your family must be preparing for this exam, or must be someone who is serving in this civil services. Like if you must be knowing who is the district collector of your district, or you must be knowing who are IAS officers, who are IPS officers. So experts from Vision IAS, Mr. Himanshu Khatri sir, I know him personally. I have attended his few lectures on world history, and I can tell you that this man really knows what this subject is, what social sciences are, and how to love this subject. So he will be coming to you and he will be telling you about the nuances of social sciences, how you can actually love the subject, how you can actually master that subject, and how you can actually, it will help you crack NTAC exam. After that, Mr. Anshul Saklani would be coming and briefing you about the program of NTAC, that what should be, what courses we have, and what ideas and plans we have for you, so that we can help you achieve the goal, goal that is NTAC. And then after that, another amazing faculty from Vision IAS, her name is Miss Jasmine. She will be telling you nuances of basic sciences and nuances of geography. She will help you grasp that content. And then we will have faculty from Galaxy classes who will be telling you the nuances of reasoning. What do you mean by verbal reasoning? What do you mean by non-verbal reasoning? And he will give you a detailed plan strategies that how one can prepare and make himself ready for the exam. So without wasting much time, let's begin the first section, that is what, why, and how of NTAC. Now, when you talk about NTAC examination, अभी आप लोगों को पता होगा 3-4 दिन पहले एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, राइट? और काफी हल्ला गुल्ला है उसके बारे में कि इंडियन एजुकेशन अब बदलने वाला है. उसी तरीके से 1961 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करने का सोचा, तो उन्होंने एक बॉडी बनाई जिसका नाम आप लोग सब जानते होंगे, दैट इज NCERT, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग. ये जो बॉडी बनाई गई थी उसका पर्पस था कि इंडिया का स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी, उसकी लेवल कैसे इंप्रूव करें. थ्रू दैट वेरियस प्रोग्राम्स वर डिजाइन्ड. उसी एक प्रोग्राम में एक प्रोग्राम निकल के आया जिसका नाम था NSTSS, दैट इज नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम. 1961 में NCERT और 1963 में आपके पास आ गया वन ऑफ द प्रोग्राम NSTSS. What was the idea of this program, National Science Talent Search Scheme? इसका आइडिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु आर रियली गुड इन द फील्ड ऑफ साइंसेज, एंड ना ही केवल आइडेंटिफाई करना बट उनको रिकॉग्नाइज भी करना और उनको नर्चर करना, सो दैट दे रियली मेक ग्रेट करियर इन द फील्ड ऑफ साइंसेज एंड सर्व द कंट्री रियली वेल. तो इस आइडिया के तहत 1963 में NSTSS लॉन्च हुआ. NSTSS का जो पहला एग्जाम था वो 1963 में सिर्फ दिल्ली रीजन के लिए एज ए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और सिर्फ दिल्ली रीजन में इसका एग्जाम हुआ. और 1964 में ये सीधे चला गया फॉर पैन इंडिया. सो 1964 में इसका जो सेकंड एग्जाम था दैट वाज द पैन इंडिया एग्जाम, जो सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज को कवर कर रहा था. लेकिन ये सारे एग्जाम्स किस लिए थे? साइंस के लिए. 1976 में फिर से एक नई पॉलिसी आई जिसमें आप आजकल सुन रहे होंगे, अभी आप लोग ये सुन रहे होंगे 5+3+3+4, राइट? कि अब से ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा. इसके बारे में अभी हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट आई एम श्योर आप लोग ये सुन रहे होंगे कि फर्स्ट 5 years वुड बी योर एलिमेंट्री एजुकेशन, देन नेक्स्ट 3 years वुड बी योर क्लास 3 to 5,
then next 3 year it will be your 6 to 8, and then you have 9 to 12. This is going to be the structure. I will not go into the details at what these structures are, but 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ 10 + 2 + 3 जो अभी भी चल रहा है। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें ब्रॉडन अप हुई स्कूल एजुकेशन, और इसी तरीके से NSTSS को भी इंप्रूव करके बना दिया गया NTSS, दैट इज नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम, जिसमें सोशल साइंसेस को भी इंक्लूड किया गया। तो 1976 में सोशल साइंस भी आपका NSTSS के पार्ट में आया और वो बन गया NTSS, जो अभी तक चल रहा है, दैट इज नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम के तहत आपका NCERT ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, दैट इज NTSE। बीच में 1976 से अब तक में थोड़ी बहुत इधर उधर चेंजेस हुई हैं, सीट्स की वेरिएशंस हुई हैं, वो चीजें होती रहती हैं, बट अभी 2019 में ये एग्जाम हुआ है और 2020 में जो नवंबर में एक्सपेक्टेड है होने के लिए, सो 2020 में ये जो NTSE एग्जाम है उसके मुताबिक 2000 पीपल वुड बी सिलेक्टेड फाइनली, जिन्हें NTSE स्कॉलर्स कहा जाएगा। अब ये जो 2000 है, इफ यू सी दिस 2000, अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे तो अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं इस एग्जाम में, और उसमें सिर्फ 2000 बच्चे NTSE स्कॉलर बनेंगे। आई विल कम बैक टू इट कि इसका क्या मतलब है, whether it's something which we need to be scared of या something which needs to be mastered. So this was the brief history of NTSE. तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम क्या है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम एक इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम है, जो आपके लाइफ का सबसे पहला पब्लिक एग्जाम होगा, जहां पे बच्चे राइट फ्रॉम कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर और गुजरात टू अरुणाचल, एक एक बच्चा इस एग्जाम को अपेयर करेगा जो क्लास 10th में होते हैं। तो ये आपके लाइफ का पहला पब्लिक एग्जाम है जिसमें इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग जो आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपेयर करने वाले हैं। सो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस और why do we need to appear in the exam. तो बच्चे बहुत सारे अक्सर पूछते हैं कि why sir, why do we have to appear in NTSE exam? तो why के लिए आप लोग सबने इंडियन आइडल का नाम सुना होगा। इंडियन आइडल क्या था? सोनी चैनल एक होती थी, वो पूरे इंडिया में बेस्ट सिंगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टैलेंट हंट प्रोग्राम बनाती थी। उसमें जो सिंगर्स, टॉप के सिंगर्स सेलेक्ट होते थे, जो नंबर 1 पे आता था उसे हम इंडियन आइडल बुलाते थे, और जैसे ही वो इंडियन आइडल बनता था उसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था अक्रॉस द कंट्री, और उसे क्या कहते हैं बॉलीवुड में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे, एंड ही वाज ट्रीटेड ऑलमोस्ट एज अ सेलिब्रिटी। ये एक प्राइवेट बॉडी थी जो इतनी बड़ी ह्यूज स्केल पे ले जाती है। नाउ आप समझिए सेम टाइप ऑफ टैलेंट हंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टैलेंट हंट करती है, वो नेशनल टैलेंट खोजती है जिसपे वो आइडेंटिफाई कर सके उन बच्चों को और उनको फर्दर नर्चर कर सके। तो मतलब ये जो बात है, दैट इज यू आर गोइंग टू बी अ नेशनल एसेट। सो फर्स्ट थिंग that why you need to appear in this exam, that if you crack this exam you are going to be a national asset. That is matlab nobody can, if you become a national asset, that's like one of the biggest milestone you can have in your life. Apart from that, the second thing which I would like to tell you, that why NTSE should be your prime goal. See, आप चाहे 10th क्लास के बाद कोई भी स्ट्रीम चुने, चाहे आप IIT इंजीनियरिंग की स्ट्रीम चुने, या आप मेडिकल की स्ट्रीम चुने, या आप ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम चुने, या आप कॉमर्स की स्ट्रीम चुने, कहीं ना कहीं आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर करना ही है, कंपटीशन को फेस करना ही है, चाहे वो किसी कॉलेजेस के लिए हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, चाहे वो किसी प्राइवेट जॉब्स के लिए हो। यू हैव टू फेस द कंपटीशन। और जब आप कंपटीशन फेस करोगे तो वो कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? वही होंगे जो आपके बैचमेट्स हैं, जो आपके साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो आपके साथ 12th पास कर रहे हैं, जो आपके साथ 10th पास कर रहे हैं। तो NTSE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोज कराता है उन सभी बच्चों के साथ जो आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जब आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको एक्सपोज करा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? आपको
एक्सपोजर मिल रहा है। किसके साथ एक्सपोजर मिल रहा है? अपने कॉम्पिटिटर के साथ। जिससे क्या होता है? जिससे आपको पता चलता है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है। जब आपको यह पता चलता है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है, उसके बाद क्या होता है? सिर्फ ऐसा नहीं पता चल रहा है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है, दूसरी चीज जो आप कंपटीशन में देख रहे हो कि जब आप कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हो, जैसे आप नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तैयारी शुरू करोगे, आप आगे बढ़ोगे, जब आप एग्जाम की तैयारी जब कर रहे हो तो ये प्रोसेस एक लर्निंग प्रोसेस होता है, जो आप पूरी रास्ते, जो आप 3 महीने या 4 महीने आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हैंडल करते हो, डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हो, और फिर जब आप जाके एग्जाम देते हो, तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ये आपके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है। फिर चाहे आप एनटीएससी के दिन, फाइनल दिन, हो सकता है आप कुछ मार्क्स से रह जाएं, या हो सकता है आप एनटीएससी स्कॉलर बन जाएं। अगर आप एनटीएससी स्कॉलर बन गए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मैं फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मुझे डर नहीं लगेगा, मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अपने आप को देख सकता हूं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूं। और अगर लेट्स से कि कुछ वजह से हम नहीं क्रैक कर पाए, कुछ वजह से हम रह गए, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम फाइनली पेपर देके निकलेंगे और जो एक्सपीरियंस होगा, तो हमें पता होगा कि हम कहां पर चूक गए, हम कहां पे रह गए। तो एटलीस्ट ये आपका जो सेल्फ डाउट है वो खत्म हो जाएगा। आपको ये पता हो जाएगा कि हाँ, मैं थोड़ा सा और पुश करता या थोड़ा सा और स्ट्रैटेजी ठीक करता तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से आप फ्यूचर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। चौथी चीज जो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगी, आप जैसे आगे बढ़ोगे, आप डिफरेंट एकेडमिक्स लोगों से मिलोगे, आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स में जाओगे, आपकी रिज्यूमे बनेगी, उसमें आपको लिखा होगा, आपके रिज्यूमे के आगे अगर लिखा होगा एनटीएससी स्कॉलर, तो इसका मतलब है आपकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी आपके बोलने से, आपके बात करने से पहले ही बन चुकी है। मतलब people will know that okay, the person who is sitting in front of us has academic credentials and we don't have to doubt him or her। और एक होता है कि एक आपका एक ऑरा बन जाएगा, एक बैज ऑफ ऑनर आप लेके चलेंगे, तो ये जो बैज ऑफ ऑनर है वो आपके साथ हमेशा चिपका रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि स्कॉलरशिप बहुत बड़ा मिलता है या बहुत जरूरी स्कॉलरशिप है। ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, आप लोग जितने भी बच्चे अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आई एम श्योर क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए उतना बड़ा ये अचीवमेंट नहीं है कि कुछ जो अमाउंट्स होते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट नहीं होते, बट ऑफ कोर्स इट्स अ गुड अमाउंट एंड यू कैन एंजॉय दैट, बट दैट इज द लीस्ट पार्ट, आई वुड से, दैट इज नॉट द बिग पार्ट। नाउ हाउ एनटीएससी स्कॉलर्स आर सिलेक्टेड? एनटीएससी जो एग्जाम है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है। तो ये 2 स्टेजेस में होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में स्टेट लेवल का बात होती है। अब स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आपकी स्टेट बोर्ड कंडक्ट कराती है। जो फर्स्ट स्टेज है वो एनसीईआरटी नहीं बल्कि आपकी स्टेट बोर्ड्स कंडक्ट कराती है, एससीईआरटी कंडक्ट कराती है। तो जैसे कि आप अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यूपी की जो एससीईआरटी डिपार्टमेंट है वो आपका यूपी के लिए पहला स्टेज कंडक्ट कराएगी। अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली की बोर्ड आपका स्टेज 1 कंडक्ट कराएगी। आप किसी यूनियन टेरिटरी या डिफरेंट स्टेट्स में हैं तो आपके रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी और रिस्पेक्टिव स्टेट आपका स्टेज 1 कंडक्ट कराएगी। दूसरा स्टेज जो होता है दैट इज बीइंग कंडक्टेड ऑन अ नेशनल लेवल एंड दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फाइनल एनटीएससी स्कॉलर की जो जर्नी बनने की वो है 2 स्टेजेस में, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में जो आपके पेपर्स आते हैं, अगर मैं स्टेज 1 की बात करूं, स्टेज 1 में 2 पेपर आते हैं आपके, मैट और सैट। यहां भी फॉरेस्ट व्यू में बात करेंगे, उसके बाद डिटेल बात आपको, जैसा कि मैंने कहा है कि जो हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज हैं दे विल बी गिविंग यू मोर नुआंसेस। तो पहला जो पेपर होता है वो मैट होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो सैट होता है। मैट 2 घंटे के पेपर होते हैं, ये दोनों 2 आवर्स के पेपर होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। इन दोनों में मैट जो होता है वो आपका, मैट को
आप जब अगर आप क्या कहते हैं 40% नहीं ला रहे हो मैथ में, if you are not scoring 40%, then your paper 2 that is SAT will not be corrected and you will be out of the competition. तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को और ओबीसी की कैटेगरी के बच्चों को अगर कंपटीशन में रहना है और उनको देखना है कि मुझे मेरा सैट भी कॉपी चेक करेक्ट हो, तो इसलिए आपको पहला जो कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा दैट इज 40%. अगर आप SC ST या फिजिकल हैंडीकैप विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो 32% आपको लाना पड़ेगा मैथ में. अगर मैथ में आपको 32% आते हैं या तभी आपका सेकंड पेपर जो है सैट का वो करेक्ट होगा. तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 40% और 30%, लेकिन 40% 32% लाने से भी कुछ होता नहीं है क्योंकि इसके लिए कट ऑफ काफी हाई जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये आपकी क्वालिफाइंग है. फाइनल जो आपका जो स्कोर देखा जाता है वो दोनों का इंक्लूड करके देखा जाता है कि आपका मैथ प्लस सैट में क्या स्कोर है. मैथ प्लस सैट में आपका जो टोटल स्कोर आता है उससे पता चलता है आपको कि आपकी क्या स्टैंडिंग है और आप अपने स्टेट से क्वालिफाई कर पाए हैं कि नहीं. तो जैसा कि मैंने कहा कि अराउंड 10 लाख बच्चे अक्रॉस द कंट्री इस एग्जाम को अपेयर करते हैं, जिसमें हर स्टेट का डिफरेंट कोटा होता है. अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपका कोटा होता है, आपके लिए कोटा जो एलोकेटेड है 1400 प्लस है. अगर आप यूपी से हो, अगर आप दिल्ली से हो तो आपके लिए 150 प्लस है, 153 आई थिंक. और अगर आप हरियाणा से हो तो यू आर अराउंड 170 180 प्लस. तो इसी तरीके से आप क्या कहते हैं, जब एनटीएसी के आप एनसीईआरटी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एनटीएसी का ब्रोशर मिलेगा जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी. तो ये आपको ये समझ में आना होगा कि यूपी को सबसे ज्यादा नंबर दिया जाता है बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन. तो अगर आप 1400 बच्चों में आपको आना होगा तभी आप जाके स्टेज 2 में जा पाओगे. सैट की अगर मैं बात करूं तो सैट में भी आपके 100 सवाल होते हैं, 120 मिनट में 2 घंटे में आपको करना होता है. सैट का अगर मैं ब्रेकेज देखूं तो सैट का फुल फॉर्म है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और मैथ का फुल फॉर्म है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट. मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का एक दूसरा नाम आप रीजनिंग भी कह सकते हैं. 2 तरीके की रीजनिंग होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग. इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं. इसके नुआंसेस मैं आपको फॉरेस्ट व्यू में बताऊंगा. और सैट में आपके 3 सब्जेक्ट एरियाज टेस्ट किए जाते हैं. 1 इज सोशल स्टडीज, सेकंड इज साइंस और थर्ड इज मैथमेटिक्स. सिलेबस जो होता है आपका वो क्लास 9th और 10th की स्टैंडर्ड जो आपकी स्टेट, अगर आप स्टेज 1 में देख रहे हो तो एनसीईआरटी प्लस आपको स्टेट का भी, स्टेट बोर्ड के पेपर के भी सिलेबस को देखना होगा. और जब आप सेकंड स्टेज में चले जाते हो तो 9th 10th का एनसीईआरटी सिलेबस देखना होता है. So that is the idea of how papers are conducted in first stage. इस तरीके से होता है. इसी तरीके से अगर आप 1400 बच्चों में आगे हैं, अगर आप यूपी से हो और 1400 बच्चों में आगे हो तो आपका स्टेज 2 होगा. अगर आप दिल्ली से हो और आप टॉप 150 बच्चों में आगे हो तो आपको स्टेज 2 के लिए इनवाइट किया जाएगा. फिर उसके बाद ये तो बात हो गई कि एनटीएसी एग्जाम है क्या, और ये भी पता चल गया कि हाँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वाई पार्ट ऑफ एनटीएसी. और ये भी पता चल गया कि कैसे एनटीएसी स्कॉलर्स बनते हैं, 2 स्टेजेस में और 2 पेपर. अब क्वेश्चन ये है कि इस एग्जाम में एनटीएसी स्कॉलर बनता कौन है. जैसा कि आप जानते हो, लेट्स से मैं एक बॉडी की बात करूं. अगर इस बॉडी को आगे जाना है तो क्या करना होगा, एक फॉरवर्ड फोर्स लगाना होगा. और इस बॉडी को अगर पीछे जाना है तो क्या करना होगा, एक बैकवर्ड फोर्स लगाना होगा. उसी तरीके से इस बॉडी को अगर साइडवेज जाना है तो क्या होगा, साइडवे फोर्सेस लगाना होगा. एंड इन सेम फैशन अगर इस बॉडी को ऊपर जाना है तो अपवर्ड फोर्स और नीचे जाना है तो डाउनवर्ड फोर्स. तो आप जैसा कि जान रहे हैं किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए
डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फोर्सेस चाहिए, किस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगा है उससे आपका डायरेक्शन पता चलता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से इंफ्लुएंस होते हैं। हमारी लाइफ डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से कैसे इंफ्लुएंस होती है? जैसे कि आप सोच रहे होगे कि यार यूपी शहर में, यूपी स्टेट में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे स्कूल्स हैं उसमें मेरा एक स्कूल है, और उस स्कूल में मेरी क्लास में इतने सारे सेक्शंस हैं उसमें मेरा एक सेक्शन है, और उस सेक्शन में तो मैं फर्स्ट आता ही नहीं हूं, उस सेक्शन में तो मैं सेकंड आता ही नहीं हूं, उस सेक्शन में तो मेरी कोई स्कोर ही नहीं आती है, मेरी रैंक ही नहीं आती है, तो मैं इस एग्जाम के लिए, तो ये एग्जाम तो मेरे लिए है ही नहीं, आप तुरंत पहले ही सोच लोगे। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंस है जो आपको पीछे की तरफ ले जाता है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए कि हाँ 9th क्लास में मेरा परफॉर्मेंस बड़ा खराब था, 8th क्लास में मेरा परफॉर्मेंस बड़ा खराब था, 10th मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये तो एग्जाम मेरे लिए है ही नहीं, तो आपको वो फोर्स क्या कर रहा है? पीछे की तरफ ले जा रहा है। ये आपका एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट है, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है ये आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, ये आपको आगे नहीं जाने दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जब आप लेट से आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे एनटीएसी क्रैक करना है, मुझे एनटीएसी की तैयारी करनी है, लेकिन जैसे आप एक दिन तो आप मोटिवेटेड होके पढ़ाई किए, लेकिन उसके बाद आपको अगले दिन जब आप बैठे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप मोबाइल फोन उठा लिए, आप फेसबुक पे चले गए, आप इंस्टाग्राम पे चले गए, आप फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे चले गए, आप दोस्ती में चले गए, आप घर के डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में लग गए, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? कहीं ना कहीं आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका जो डायरेक्शन था वो हेजी हो गया। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आगे ले जाती है? और वो है पर्पस, जो आपको फ्यूचर में ले जाती है, वो है फोर्स ऑफ पर्पस। अगर आपको पर्पस क्लियर है, अगर आपका पर्पस क्लियर है, तो आप डेफिनेटली आगे जा सकते हो, आप डेफिनेटली सारे हर्डल्स को क्रॉस कर सकते हो। ये पास्ट के इन्फ्लुएंसेस, ये डिस्ट्रैक्शन, इन सबको इग्नोर करते हुए आप सारी चीजों को आगे ले जाओगे। लेकिन वो फोर्स जो आपका पर्पस है, जो वो क्लैरिटी है, अगर उस पर्पस में क्लैरिटी है तभी ये आगे जा पाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्लैरिटी कैसे लाएं? जैसे ऐसे थोड़ी हो जाएगा क्लैरिटी की सर क्या कहते हैं मैं क्लियर हूं कि मुझे एनटीएससी स्कॉलर बनना है और मैं सर निकल लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्लैरिटी आती है धीरे धीरे। धीरे धीरे कैसे क्लैरिटी आती है? जब मुझे पता होता है कि ठीक है मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे एनटीएससी स्कॉलर बनना है। अगर मुझे एनटीएससी स्कॉलर बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, सर्टेन चीज है, मुझे सुबह उठ के रीजनिंग के क्वेश्चंस करने चाहिए, मुझे सोशल साइंस पढ़ने चाहिए, मुझे मैथ्स के प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर मैं ये सब नहीं कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। जैसे कि अभी हिमांशु खत्री सर आएंगे तो उनसे जरूर पूछिएगा आप लोग कि वो सिविल सर्विसेज में इतने सारे टॉपर्स को निकालते हैं, इतने सारे टॉपर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं, वो अपने सक्सेस मंत्रास की बात करते हैं, तो व्हाट रियली मेक्स देम गोइंग, व्हाट रियली मेक्स देम क्लिक, और वो ये है कि वो हर दिन क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग एवरी डे। जैसे कि सुबह उठ के अगर एक आईएएस एस्पिरेंट है, एक आईएएस एस्पिरेंट है, अगर सुबह उठ के उसको न्यूज़पेपर पढ़ना है, अगर सुबह उठ के उसे 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है। Nothing can sway him away from the newspaper reading। तो 2 घंटे वो डेफिनेटली बैठेगा और न्यूज़पेपर पढ़ेगा। अगर उसे आज रात को बैठ के एक ऐसे प्रैक्टिस करना है तो करना है, he will definitely going to do the practice। अगर उसको आज कोई एनसीईआरटी बुक उठा के 2 घंटे बैठ के उसकी पूरी नोट्स क्रैमिंग करनी है, उसकी पूरी नोट्स डेवलप करनी है, उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करनी है तो करनी है। तो ये छोटे छोटे चीजें जो रोज करते हैं, तो फिर वो 1 साल में अगर ये रोज करते हैं तो वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, वो आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप रोज जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो आप कर रहे हो तो आप बन जाओगे एनटीएससी स्कॉलर। नो मैटर आपका पास्ट क्या रहा, नो मैटर आप 9th 10th में क्या थे। जैसे कि हिमांशु खत्री सर से ही मेरी अभी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि 10th तक मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट था, मतलब मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगती थी, और स्कूल में सब उन्हें बोलते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। हिमांशु खत्री सर 12th में आईआईटी क्रैक कर दिए विदाउट एनी, मतलब उनको बहुत
ज्यादा समझ में भी नहीं आता था टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, वो खुद से बैठ के व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू, उन्हें किस बुक के साथ कितना वक्त बिताना है, किस नोट्स के साथ कितना वक्त बिताना है, वो सारी चीजें के साथ इन्वॉल्व हुए। और जब वो इन्वॉल्व हुए तो सब कुछ समझ में आ गया। तो पास्ट की एक्सपीरियंस उनके लिए मैटर ही नहीं की कि मैं 9th-10th में क्या कर रहा था, 11th-12th में मैं क्या कर रहा था। उनके लिए बस एक ही चीज था कि भैया मेरे को आईआईटी जाना है, और जब वो आईआईटी जाना है तो मुझे फिजिक्स से प्यार करना है, मुझे केमिस्ट्री से प्यार करना है, मुझे मैथ से प्यार करना है, मुझे मुश्किल भी हो रहा है तो भी मुझे लगे रहना है। और जब वो लगे रहे तो समझ में आने लगा, और जब समझ में आने लगा तो निकल गया। और जब वो वहां पे नहीं रुके, जब वो आईआईटी क्रैक कर दिए तो उनको फिर जॉब में मजा नहीं आया, तो उन्हें बनना था सिविल सर्विसेज में जाना था। वो सारी दुनिया छोड़ के सिविल सर्विसेज में लग गए, और सिविल सर्विस में लगे तो क्या हुआ, विद इन अ ईयर और 2 ही बिकेम एन आईआरएस ऑफिसर। और आईआरएस ऑफिसर बने तो उनको रियलाइज हुआ कि मुझे टीचिंग में बहुत मजा आता है, तो वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब मैंने उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास 1-2 अटेंड की तो मुझे लगा कि अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो जब वो आएंगे तो जरूर आप उनसे पूछना कि कैसे सोशल साइंस को एंजॉय किया जाता है, कैसे सब्जेक्ट को एंजॉय किया जाता है। तो अगर आप वो सारी चीजें जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो आप कर रहे हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो नहीं बढ़ोगे। मतलब लेट्स से मुझे अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करनी है, मुझे लाइफ में अच्छा करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, तो मुझे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करूंगा, मेरी बॉडी में BDNF जनरेट होगा, मेरी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में एनर्जी आएगी, मेरी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी आगे वाली स्ट्रेसेस को हैंडल करने के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, इफ आई एम गोइंग टू टेक अ मीटिंग विद माय टीममेट्स, देन आई एम गोइंग टू टेक द बेस्ट ऑफ माय मीटिंग। अगर मुझे क्या कहते हैं लोगों से मिलना है और मुझे लोगों से बात करनी है या मुझे बच्चों से बात करनी है, तो which is the camera side? This is the camera side. Okay. तो मुझे जो बात करनी है वो करनी है, जो मुझे मेल लिखना है, if I'm going to write the email, that is going to be the best email of my day. If I am going to make a phone call, that is going to be the best phone call of my day. If I have to spend time with my family, that is going to be the best time I'm going to spend with the family. तो अगर मैं ये छोटी छोटी चीजें जो मुझे पूरे दिन में करनी है, अगर मैं उसमें अपना बेस्ट दूं, तो वो बहुत ही पावरफुल डे हो जाता है। वो बहुत ही पावरफुल डे हो जाता है। जब मैं रात को सोने जाऊंगा तो आई विल फील वेरी कंफर्टेबल दैट ओके आई लिव्ड अ वेरी गुड डे, और तब आई विल स्लीप लाइक अ बेबी। फिर अगले दिन मैं उठूंगा, और मैं इसे 7 दिन रिपीट कर दूंगा, और जब मैं इसे 7 दिन रिपीट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक पावरफुल वीक। और जब इस पावरफुल वीक को मैं 4 टाइम्स और रिपीट कर जाऊंगा तो ये एक अमेजिंग मंथ, और इस मंथ को मैं 12 बार रिपीट कर दूंगा तो आई एम ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट नाउ, ऑल टुगेदर आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। आप जो भी अचीव करना चाहते हो उस टैंजेंट पे पहुंच चुके हो। दैट इज हाउ इट गोज। तो इसी तरीके से जो आप दिन दिन क्या करते हो वो मैटर करता है। आप अचानक से रात को क्या कर, एक दिन क्या कर रहे हो, 2 दिन क्या नहीं कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एक छोटा सा मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पे एक सोशल रिसर्च हो रखा था, जिसमें एक छोटी सी बात कर रखा था कि एक हाइपोथेटिकल डेटा मैं देता हूं, जैसे कि 1 लाख लोगों को, अगर मैं 1 लाख लोगों को बोलूं कि आप लोगों को अगले 4 हफ्ते तक सुबह रोज 6 बजे उठना है और 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना है। रोज सुबह 6 बजे उठना है और 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना है, 4 हफ्ते। आसान काम है, सुनने में भी आसान लग रहा है, कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है 6 बजे। लेकिन आप देखोगे कि आफ्टर 3rd वीक और 4th वीक उस 1 लाख लोगों में मुश्किल से 1000 लोग होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, 99,000 लोग छोड़ चुके होंगे। ऐसा क्या हुआ, क्या चीज हुई जो उनको छोड़ दी? क्या ये बहुत ही हाई स्किल सेट का काम था? क्या ये बहुत ही हाई टैलेंट का काम था? एक बहुत ही अमेजिंग चीज जो चाहिए होती है, जो सबसे वैल्यूएबल चीज चाहिए होती है, जो सबसे प्राइज्ड स्किल सेट चाहिए होती है, वो ये है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है कि नहीं, आप में परसिस्टेंस है कि नहीं। अगर आप में परसिस्टेंस है तो फिर आप चले जाओगे आगे। अगर आपके अंदर परसिस्टेंस नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप अक्सर देखते हो बहुत बड़े बड़े लोग बड़े बड़े डिग्रीज के साथ आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग
बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे होते। तो अगर आप मुझसे पूछोगे टैलेंट इंपॉर्टेंट है, आप मुझसे पूछोगे फैंसी डिग्री इंपॉर्टेंट है, आप मुझसे बोलोगे कौन सी स्किल सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बोलूंगा सिर्फ एक ही स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी कैपेबिलिटी टू रिमेन परसिस्टेंट। अगर आप परसिस्टेंट हो तो आप कर लोगे। एक कहानी बेसिकली इसमें सुनाना चाहूंगा। मैं अक्सर इन बच्चों से, जो बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मैं ये कहानी जरूर शेयर करता हूं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा। ये जो कहानी है इसमें दो कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है एक 30 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यंग डायनेमिक स्मार्ट सा बंदा, फैंसी डिग्री के साथ, अमेजिंग कॉलेज से पढ़ के आया है, अमेजिंग जॉब कर रहा है, हिज लाइफ इज फैंटास्टिक एंड इज वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी माइंडफुल पर्सन। इस स्टोरी में जो दूसरे कैरेक्टर हैं वो हैं एक प्रोफेसर साहब, रिटायर्ड प्रोफेसर साहब, 60 साल के। उन्होंने भी काफी अच्छी जिंदगी जी है और काफी रिस्पेक्ट से अपनी लाइफ को, अपनी एकेडमिक लाइफ को बिताया है और नाउ ही इज रिटायर्ड नाउ। अब इन दोनों की मुलाकात होती है एक दिन, जब दोनों अपने घर के लिए एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदने जाते हैं। तो जब वो प्लॉट ऑफ लैंड ले रहे होते हैं तो दोनों का प्लॉट ऑफ लैंड एडजेसेंट होता है एक दूसरे के। तो एक दूसरे के एडजेसेंट उनका प्लॉट ऑफ लैंड था, तो दोनों ने अपना अपना लैंड खरीद लिया। अब जब दोनों ने लैंड खरीदा तो अब दोनों ने अपना घर बनाना शुरू किया। तो इस दौरान दोनों में पहले एक्वेंटेंसशिप डेवलप हुआ, फिर दोनों में दोस्ती डेवलप हुई, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों डिफरेंट जनरेशन के थे लेकिन दोस्त अच्छे बन गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से काफी अच्छा लगता था बात करना और दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से एंगेज होते थे। धीरे धीरे दोनों का घर बन गया। जब दोनों का घर कंप्लीट हुआ तो प्रोफेसर अपने परिवार के साथ अपने घर में शिफ्ट हो गए और इंजीनियर साहब अपने परिवार के साथ अपने घर में शिफ्ट हो गए। अब सिंस दोनों में दोस्ती हो गई थी तो दोनों एक दिन बैठ के शाम में चाय पी रहे थे साथ में। तो जब चाय पी रहे थे साथ में तो दोनों में डिस्कशन हुआ कि यार हमारे घर के सामने जो फेंस है वहां पे हम एक अच्छा गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर के सामने गार्डन तैयार करता हूं, आप अपने घर के सामने गार्डन तैयार कीजिए। तो दोनों लोगों ने बोला कि ठीक है चलो गार्डन तैयार करते हैं। तो दोनों में एक शर्त सा लग गया कि किसका गार्डन सबसे ग्रीन होगा, किसका गार्डन सबसे अमेजिंग होगा, किसका गार्डन सबसे खूबसूरत लगेगा, सबसे फूल फल सब दिखेंगे सबसे ज्यादा। तो अब दोनों में जब कंपटीशन लग गया तो दोनों अपने अपने फील्ड के धुरंधर आदमी हैं, दोनों अपने अपने लाइफ को अच्छे से जीते हैं और अच्छे से जिए हैं। तो जो 30 इयर्स ओल्ड इंजीनियर साहब थे उन्होंने तुरंत गए अपने सारे बॉटनिस्ट फ्रेंड, हॉर्टिकल्चर में जो हैं डिफरेंट बुक्स उठाए, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज किए, जो गार्डनिंग के एक्सपर्ट्स हैं उन सबको रिसर्च करने के बाद बेस्ट ऑफ सीड्स, बेस्ट ऑफ प्लांट्स, बेस्ट मैन्योर्स, बेस्ट फर्टिलाइजर्स, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट प्रैक्टिसेस, सबको रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। प्रोफेसर साहब से वो ओल्ड जनरेशन के थे तो वो अपना ओल्ड वेज से क्या किए कि उन्होंने बस कुछ अच्छे प्लांट्स ले लिए, कुछ अच्छे सीड्स ले लिए और उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। तो इंजीनियर साहब क्या कर रहे थे, इंजीनियर साहब पूरा रिसर्च करके एकदम साइंटिफिक वे में, एकदम मैथमेटिकल वे में एक एक चीज प्रोवाइड कर रहे थे। तो उनका जो गार्डन था वो लश ग्रीन होने लगा, ग्रो करने लगा, जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। प्रोफेसर साहब क्या करते थे, प्रोफेसर साहब अपने प्लांट सीड्स को उतना ही पानी देते थे कि जितना उनका वो मरे ना, जितना उनका प्लांट मरे ना, उतना ही फर्टिलाइजर, उतना ही मैन्योर, उतना ही मिनरल्स देते थे कि उनका जो प्लांट है वो मरे ना, उनका प्लांट बस जी जाए। तो जैसा कि इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छे से सब कुछ दिया तो उनका पूरा ग्रो कर रहा था और प्रोफेसर साहब का धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन ग्रो कर रहा था। बट डेफिनेटली विथ टाइम साफ दिख रहा था कि इंजीनियर साहब तो ये शर्त जीत गए, क्योंकि उनका जो पूरा गार्डन था वो विद इन नो टाइम काफी ग्रीन लगने लगा, भरा भरा लगने लगा, अमेजिंग फ्लावर्स निकलने लगे। और प्रोफेसर साहब का भी गार्डन बड़ा हो रहा था, अच्छे से हो रहा था, लेकिन इंजीनियर साहब के सामने साफ लग रहा था कि इस बार तो इंजीनियर साहब जीत गए हैं शर्त। थोड़ी दिन और बीती और एक दिन मौसम बड़ा खराब हो गया और जब मौसम खराब हुआ तो तूफान ये सब आ गए। अब रात को तूफान आ रहे हैं,
दोनों अपने अपने घर में परेशान कि भाई उनका गार्डन इतने मेहनत से उन्होंने अपने गार्डन को लगाया है, क्या ये तूफान को सह पाएगा, कहीं गार्डन तहस नहस ना हो जाए। पर जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी रात बिताई। जब वो सारी चीजें बिता दिए तो फिर सुबह उठ के निकले। सुबह जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि इंजीनियर साहब का गार्डन पूरा तहस नहस हो चुका है। इंजीनियर साहब का गार्डन इधर उधर टूट फूट चुका है और प्रोफेसर साहब का गार्डन इंटैक्ट था। प्रोफेसर साहब का गार्डन थोड़ी बहुत इधर उधर डैमेज हुई थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द ट्रीज अपनी जगह पे थे। तो इंजीनियर बेचारे कंफ्यूज हो गए कि हुआ क्या, और प्रोफेसर साहब काफी खुश थे कि उनकी गार्डन बच गई। तो अब आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे जो गार्डनिंग करते हैं समझ चुके होंगे कि प्रोफेसर साहब क्या कर रहे थे और इंजीनियर साहब क्या कर रहे थे, और प्रोफेसर साहब का प्लांट क्यों अपना सरफेस नहीं छोड़ा और इंजीनियर साहब का प्लांट अपना सरफेस छोड़ दिया। देखो रीजन ये रहा कि प्रोफेसर साहब का जो प्लांट था, प्रोफेसर साहब अपने प्लांट को क्या कर रहे थे, उतना ही वाटर दे रहे थे, उतना ही सीड्स दे, उतना ही मैन्योर्स दे रहे थे, उतना ही फर्टिलाइजर्स दे रहे थे कि वो मर ना जाए, लेकिन पूरा भूख उसका नहीं मिटाते थे। तो जब आप प्लांट की पूरी भूख नहीं मिटाते हैं तो प्लांट को वाटर और चाहिए, प्लांट को मिनरल्स और चाहिए, प्लांट को सीड्स और चाहिए, प्लांट को मैन्योर्स और मिनरल्स चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए रूट क्या करेगा, रूट इन सब चीजों को खोजेगा, और इन सब चीजों को खोजने के लिए क्या करेगा, वो और अंदर जाने लगेगा, वो और सरफेस के डेप्थ में जाने लगेगा, और मिनरल्स, वाटर, इस सब की तलाश में। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में पूरा जो रूट है वो टोटली अंदर चला जाएगा और वो अपने सरफेस को पकड़ लेगा। ऑन द अदर हैंड जो इंजीनियर साहब थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने रूट्स को सब कुछ सरफेस पे ही दे रहे थे। उनको पानी मिल जा रहा था, उनको मिनरल्स मिल जा रहा था, उनको फर्टिलाइजर्स मिल जा रहा था, उनको मैन्योर्स मिल जा रहा था। तो क्या हुआ, उनको कभी ये जरूरत नहीं महसूस हो रही थी कि मुझे नीचे जाने की जरूरत है। तो उनके रूट्स को सब कुछ शुरू में ही मिल जा रहा था, इसलिए वो, जिसकी वजह से वो अंदर डेप्थ तक नहीं जा पाए, जिसकी वजह से उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हुई जो स्ट्रेंथ प्रोफेसर साहब के प्लांट की डेवलप हुई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस पूरी कहानी से हमें यह समझ में आ रहा है कि आप पर्सनली जब किसी चीज में लगते हो, जब आप सेल्फ रिलायंट होते हो चीजों को लेके, तो आप ज्यादा अचीव कर लेते हो। जैसा कि आप अक्सर देखते होगे, आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज आते हैं, आईआईटी के बच्चों के इंटरव्यूज आते हैं, और आप जब देखोगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे शहर, छोटे गांव के हैं, जिनको कोई एक्सपोजर नहीं था, ना इनको कोई बड़े स्कूल से पढ़े हैं, बट वो समहाउ आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, समहाउ वो आईआईटी क्रैक कर जाते हैं और अच्छे रैंक से क्रैक कर जाते हैं। और आप देखते हो कि दिल्ली के मेट्रो सिटीज के बच्चे जो सब कुछ से एक्सपोज्ड हैं, वो कहीं ना कहीं क्रैक करने में पीछे रह जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको ये बता रहा है कि सेल्फ रिलायंस और मोटिवेशन, जो इंटरनल मोटिवेशन है, वो कितना जरूरी है। यहां पे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि अगर पर्पस आपका क्लियर है, अगर आप से जो एक्सपेक्टेड है, जो आपकी भूख है, जो आपकी एपेटाइट है, उसको आप देखने के लिए रोज फाइट मार रहे हो, तो मतलब आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं करोगे। तो इसलिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि एनटीएसी स्कॉलर बनने के लिए पास्ट में आपका जो भी पैटर्न रहा है, आप अभी भी एनटीएसी स्कॉलर बन सकते हो अगर आपका पर्पस क्लियर है और व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू टू डू एवरी डे। इफ यू डू दैट, you will be able to become what you have achieved। और ये सिर्फ एनटीएसी के लिए सही नहीं है, किसी भी लाइफ में किसी भी गोल को बनाइएगा उसके लिए सही है। अब आते हैं फॉरेस्ट व्यू ऑफ पेपर पे। फॉरेस्ट व्यू हम किसका देखेंगे, फॉरेस्ट व्यू हम देखेंगे सबसे पहले मैट का, फिर हम देखेंगे सैट का। अगर मैं मैट की बात करूं, मैट बेसिकली रीजनिंग का टेस्ट है, और रीजनिंग दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग मतलब शाब्दिक, जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब अशाब्दिक, जिसमें वर्ड्स नहीं, साइंस यूज होते हैं।
जिसमें साइंस यूज होते हैं, जिसमें आपको डायग्राम्स दिए जाते हैं। जैसा कि अगर मैं बोलूं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं वर्बल रीजनिंग में, तो क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको पूरे डिटेल से आपके सर अभी आएंगे और वो आपको सारे अच्छे से समझाएंगे। निशान सर आएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि वर्बल रीजनिंग के कैसे सवाल आते हैं, वर्बल रीजनिंग का सिलेबस क्या है। बट समहाउ आपको ये समझ में आना चाहिए कि वर्बल रीजनिंग में सवाल ऐसे आते हैं कि फैमिली ट्री के सवाल आते हैं, डायरेक्शन के सवाल आते हैं। तो ये फैमिली ट्री, ये सब सवाल क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि ए की वाइफ बी है और बी ए बी के दो बच्चे सी डी हैं और सी डी शादी करते हैं ई एफ से, तो एफ का रिश्ता ए से क्या होगा? अब इस तरीके के सवाल के लिए आपको क्लास 9th 8th 7th में आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड क्या थी वो मैटर नहीं करेगी। आपका रीजनिंग कैपेसिटी क्या है वो आपके पिछले एकेडमिक लाइफ पे मैटर नहीं करेगी। रीजनिंग कैपेसिटी आपकी प्रेजेंट स्टेटस में क्या है और रीजनिंग कैपेसिटी के लिए आपने आगे की क्या जर्नी ट्रैवल की है, वो अगर आप पूरा कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हां। तो मतलब अगर मैं देखूं तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप अगर बहुत अच्छे बच्चे हो या आप बहुत एवरेज बच्चे हो, तो भी रीजनिंग के टाइम में आप दोनों सेम स्टैंडिंग पे हो। अब रीजनिंग को मास्टर कैसे किया जाए? अब आपको देख रहे हो कि 2 घंटे में आपके पास 100 सवाल आने वाले हैं, तो 2 घंटे में 100 सवाल तो सर कोई भी कर लेगा, ऐसे करके सोच के, तुक्का मार के, व्हाटएवर दैट इज। लेकिन आपको अगर एग्जाम में एक्यूरेसी और अपने मार्क्स को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करना है तो आपका एक्सपोजर सही होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस सेशन बहुत सही होना चाहिए। तो मैं मैथ को मास्टर करने का 2 तरीका बताऊंगा। एक होगा आपका डेली प्रैक्टिस और दूसरा होगा आपके मॉक टेस्ट फुल सिलेबस। अगर लेट से क्या कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे एनटीएससी स्कॉलर बनना है, तो जिसमें मैथ एक पेपर आता है जिसमें रीजनिंग आते हैं, रीजनिंग में 100 सवाल आते हैं और रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आता है और इसमें कोई पास्ट मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज कि आपकी प्रेजेंट रीजनिंग कैसी है और आपका एक्सपोजर कैसा है। तो आप जब डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, तो आप लेट से आप शुरू करते हो, बिगिन करते हो फर्स्ट डे 30 मिनट्स में, आप 30 मिनट्स प्रैक्टिस करते हो। लेट से आपने 25 क्वेश्चंस से स्टार्ट किया, ठीक है, आपने फर्स्ट डे 30 मिनट्स 25 क्वेश्चंस किया, फिर सेकेंड डे भी 25 क्वेश्चन, थर्ड डे भी 25 क्वेश्चन, ऐसे करके आप रोज 25 क्वेश्चंस करने लगे। टाइम गैप में, टाइम स्पैन में, किस टाइम स्पैन में? 30 मिनट्स में। तो जब आप ये रोज 3 महीने तक ये करते रहोगे, जब आप 3 महीने तक करते रहोगे, तो हो सकता है पहले दिन आपके 25 क्वेश्चन में सिर्फ 10 सही हो सकता है पहले दिन आपके सिर्फ 10 सही हो, दूसरे दिन हो सकता है सिर्फ 12 सही हो। ऐसे करके आप हो सकता है कि फर्स्ट 15-20 दिन तक आपके 25 सवालों में 5-10 ही सही हो रहे हो। लेकिन आप जब लगातार लगे रहोगे, जब आप 30 डेज का स्पैन क्रॉस कर जाओगे, तो आपका एक्सपोजर क्वेश्चन से इतना ज्यादा हो जाएगा, आपको लॉजिक्स इतने ज्यादा पता चलने लग जाएंगे, आपको पैटर्न्स इतने ज्यादा पता चलने लगेंगे कि आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होना शुरू होगा। और जैसे ही आप इस चीज को 90 डेज कंटिन्यू कर देते हो, 90 डेज कंटिन्यू करने का मतलब कितने क्वेश्चंस हो गए? 90 into 25, दैट मेक्स इट 2250 क्वेश्चंस, मतलब 2250 क्वेश्चन आपने रोज 25-25 सवाल करके सिर्फ 30 मिनट्स निकाल के जो कंसिस्टेंटली कर दिया, तो फिर जब फाइनली जब आप नवंबर में एग्जाम देने बैठोगे तो मतलब नोबडी कैन टच यू। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपका एक्सपोजर स्ट्रांग है, आपको पता चल चुका है कि कितने वेरिएशंस होते हैं, आपको पता चल चुका है कि जब नहीं आए तो कौन सा बेस्ट गेस किया जा सकता है। गेस भी देखो, गेस भी बड़ा मैथमेटिकल होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आदमी आके गेस कर देगा, कोई भी आदमी गेस करेगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा जो बहुत मेहनत किया है वो गेस वर्क करेगा तो उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी बेटर होती है, हाई होती है। तो इसलिए आपका जो एक्सपोजर होगा वो आपका कंटेंट भी बढ़ाएगा, आपका नॉलेज बेस भी बढ़ाएगा और आपकी गेसिंग पावर स्किल्स भी बढ़ाएगा। उसके साथ जो मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट आपको एक्सपीरियंस देगा 2 घंटे बैठने का, 2 घंटे बैठने का 100 सवाल। तो जब आप इंटरवल, लेट से आप हर वीक एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप हर वीक मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मतलब आप कम से कम 12 मॉक टेस्ट दे रहे हो और 12 बार आपने सिटिंग कर ली है, तो आपको पूरा साइमुलेशन हो गया है, आप पूरे उस एक्सपीरियंस से गुजरे हो कि हां
2 घंटे बैठ सकता हूं मैं और 100 सवाल कर सकता हूं। हो सकता है पहले मॉक टेस्ट में आपको 100 में सिर्फ 40 ही आए, दूसरे मॉक टेस्ट में हो सकता है 50 आए, लेकिन 7वें 8वें मॉक टेस्ट तक आप कंफर्टेबली 90 प्लस लाना शुरू हो कर चुके होंगे। और अगर आपको एनटीएसी क्रैक करना है फर्स्ट स्टेज में, तो आपको डेफिनेटली 90 प्लस लाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं कट ऑफ ट्रेंड की बात करूं तो कट ऑफ ट्रेंड अराउंड 170 180 जाता है दोनों को इंक्लूड करके। तो आपको मैथ पेपर में और मैथ पेपर सबसे स्कोरिंग पेपर होता है, तो अगर आपको उसमें उसको मास्टर करना है तो आपको इतना टारगेट होना चाहिए कि हाँ मुझे 90 प्लस करना आना चाहिए। आइए बात करते हैं सैट में। सैट के जो 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सोशल स्टडीज, दूसरा होता है साइंस और तीसरा होता है मैथ्स। I have a bad news for students who are really good in maths and a very good news for students who are average in maths. क्योंकि ये जो एग्जाम है एनटीएसी का, ये एग्जाम आपकी मैथ्स की कैपेसिटी और साइंस की कैपेसिटी से ज्यादा आपकी ओवरऑल कैपेसिटी टेस्ट करता है। तो मैथ्स के जो सवाल आते हैं वो बड़े ही बेसिक और आसान मॉडरेट लेवल के होते हैं। कभी कभी 1-2 सवाल अगर मुश्किल भी आ गया तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैथ्स के सिर्फ 20 सवाल आते हैं, साइंस के आपके 40 सवाल आते हैं और सोशल साइंस के आपके 40 सवाल आते हैं और मैथ के 100 सवाल आते हैं। तो मैथ का वेटेज अगर मैं बोलूं तो मैथ का वेटेज हो गया 50%। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जो बच्चा पास्ट में कैसा भी परफॉर्मेंस रहा हो वो एनटीएससी स्कॉलर बन सकता है, क्योंकि 50% वेटेज बिल्कुल उस ऐसे सब्जेक्ट का है जिसका पास से कोई लेना देना नहीं, उसका प्रेजेंट से और आपकी प्रैक्टिस से लेना देना है। उसके बाद मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो ये पूरे ओवरऑल देखा जाए तो मैथ्स का रोल सिर्फ 10% का है, साइंस का रोल सिर्फ 20% का है और सोशल साइंस का रोल सिर्फ 20% का है। जो लोग मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छे होते हैं वो बच्चों को सोशल साइंस पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और वहीं पे ये मैक्सिमम जितने भी अच्छे बच्चे हैं जो एनटीएससी स्कॉलर नहीं बन पाते, उनका रीजन होता है उन्होंने मैथ में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होता है। लेट से उन्होंने मैथ में भी अच्छे से प्रैक्टिस किया होता है तो उनको सोशल साइंस में मन नहीं लगता। तो एनटीएससी क्रैक करना है तो जो 2 सब्जेक्ट आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है वो है मेंटल एबिलिटी और दूसरा है सोशल साइंस, जिसकी वजह से हम लोग अभी डिटेल्ड एनालिसिस में जाएंगे मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस में। मैथ्स में आई वुड से अगर आप क्लास 9-10 की एनसीईआरटी बुक कर रहे हो, स्कूल के एग्जाम्स में एवरेज हो, अच्छे 80% 90% आप स्कूल के एग्जाम्स में ले आते हो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब आप क्या करो, आप सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बुक होता है, अगर आप वो कर रहे हो और वो या पास्ट ईयर के 10-15 पेपर भी आप उठा के देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि 20 सवाल आते हैं मैथ्स में, और जो जिसमें से 10 सवाल आपके ज्योमेट्री सेक्शन से होते हैं और 10 सवाल अलजेब्रा सेक्शन से होते हैं। अलजेब्रा में आप बात करें तो पॉलिनोमियल हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, तो ये सारे जो चीजें हैं जो 9th और 10th की सिलेबस की है तो वो बड़ी होती है। दूसरी गलती जो मैथ्स के बच्चे करते हैं वो क्या, जब आप सैट पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो, तो जब आप सैट पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो मैथ्स के बच्चों को क्या आदत होती है, मैथ्स के बच्चों को आदत होती है सबसे पहले मैथ्स पेपर करेंगे। तो अक्सर मैं सुनता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं मुझे जो मैथ्स के कोई मुश्किल, कभी कभी गलती से 1 सवाल या 2 सवाल मुश्किल आ गए, तो बच्चे 10-10 मिनट 5-5 मिनट 8-8 मिनट मैथ्स के उस पर्टिकुलर सवाल में लगे रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम निकल जाता है। 20 सवाल करने में करीब 35-40 मिनट लगा देते हैं। जैसे ही 40 मिनट 50 मिनट आपके 2 घंटे से गुजर जाते हैं, जैसे मेरा भी टाइम अब कम हो रहा है, जल्दी से आई विल जस्ट वाइंड अप, तो जैसे ही 40-50 मिनट होता है वैसे ही बच्चे क्या कर देते हैं, पैनिक स्टेट में आ जाते हैं। और जब पैनिक स्टेट में जब बच्चा आ जाता है तो जो चीज आती हुई भी रहती है वो भी हाथ से जानी शुरू हो जाती है। तो इसलिए सैट को अप्रोच करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि मैथ्स मैं करूंगा आखिर में, मैथ्स मैं करूंगा आखिर में। क्यों भाई मैथ्स आखिर में क्यों करूंगा, क्योंकि सैट के जो 40 सवाल हैं, 40 सवाल सीधे सोशल साइंस के आने वाले हैं, फिर 40 जो बाकी के सवाल हैं उसमें 14 सवाल फिजिक्स के आने वाले हैं और 13 सवाल केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आने वाले हैं। तो करीब 50 से 60 सवाल सीधे ऐसे आने वाले हैं जो सीधे थ्योरेटिकल हैं, मतलब उसके जवाब आपको आते हैं या नहीं आते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अगर ये सवाल आ जाता है
तो आपको सिर्फ या तो आता है या तो नहीं आता है। मतलब इसमें आप 2 मिनट मंथन नहीं करेंगे, बैठ के एनालाइज नहीं करेंगे कि यार फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, या आपसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाता है कि अमीबा यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, इस टाइप के सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इसका आंसर होता है आपको आता है या आपको नहीं आता। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप देखते हो कि आपका जो सोशल साइंस का सेक्शन है और जो आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेक्शन है वो आप बड़े धमाके से बड़े आराम से कर जाते हो, और उसके बाद आपको करीब 50-60 मिनट मिल जाता है मैथ्स करने को। तो फिर आप तमीज से 20 सवाल बड़े आराम से कर लेते हो। तो ये दूसरी मिस्टेक है जो आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है कि अगर आप सैट पेपर चाहे वो मॉक टेस्ट दे रहे हो या कोई भी टेस्ट दे रहे हो, मिनी टेस्ट दे रहे हो, तो आपको मैथ्स हमेशा आखिर में करना है। दूसरा गलती जो बच्चे करते हैं वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होता है कि मुश्किल से अगर आप पिछले 5 साल 6 साल का पेपर भी उठा के देखोगे तो फिजिक्स के जो सवाल आते हैं वो ज्यादातर थ्योरेटिकल आते हैं, मुश्किल से 1-2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, और 1-2 न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो बहुत मुश्किल नहीं होते। और अगर मान लो गलती से 1-2 बार मुश्किल आ भी गए तो क्या आप अपनी पूरी प्रिपरेशन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे डाल दोगे? क्या मुश्किल से 1 सवाल 2 सवाल आएंगे आप। और बच्चे क्या करने लगते हैं, बच्चे जब एनटीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो फिजिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स उठाने लगते हैं, बड़े बड़े मुश्किल न्यूमेरिकल्स टच करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी पेपर खराब हो जाती है, उनकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी खराब हो जाती है। आपके पास 3 महीने 4 महीने का टाइम होता है, उसमें आपको सोशल साइंसेस हैंडल करने होते हैं, उसमें आपको साइंस हैंडल करना होता है, उसमें आपको मेंटल एबिलिटी हैंडल करना होता है, उसमें आपको मैथ्स हैंडल करना होता है। तो आप सिवाय 1 सवाल या 2 सवाल जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे उस पर पूरी एनर्जी ना देते हुए आपको बैलेंस अप्रोच रखना है, क्योंकि आपको फाइनली ये जानना है कि ये फिजिक्स का और मैथ्स का टेस्ट नहीं, ये आपको फाइनली एनटीएससी स्कॉलर बनने का टेस्ट है। दूसरी चीज जो आपको सैट में ध्यान रखनी होगी कि सोशल साइंस पढ़े कैसे। वो अभी हिमांशु सर आएंगे, वो आपको सोशल साइंस को पढ़ना कैसे चाहिए वो आपको अच्छे से बताएंगे। मैं लास्ट सेक्शन में आऊंगा, लास्ट सेक्शन जल्दी से मैं वाइंड अप करता हूं, फिर आपके हिमांशु सर आएंगे। लर्निंग के स्टेजेस आपको बहुत जानने बड़े जरूरी हैं कि लर्निंग के स्टेजेस कितने होते हैं, मतलब लर्निंग होती कैसे है। एक लर्निंग होती है जब आप कुछ रीडिंग करते हो, दूसरी लर्निंग होती है जब आप लेक्चर अटेंड करते हो, तीसरी लर्निंग होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो, और चौथी लर्निंग होती है जब आप टेस्ट देते हो। जब आप खुद से रीड करते हो तो आप कुछ सीख जाते हो, आप कुछ सीखने लग जाते हो और आपको लगता है कि मुझे आ गया। फिर आप जब लेक्चर में जाते हो तो पता चलता है टीचर्स इतने सारी चीजें बता रहे हैं, तो अरे ये तो मुझे पता नहीं था, तो आपको और लर्निंग होती है। फिर आप जैसे मान लो आपने गांधी जी की बुक पढ़ ली, गांधी जी के बारे में पूरा स्ट्रगल पढ़ लिया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पढ़ लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ लिया, टीचर ने भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब आप बैठे टेस्ट देने के लिए तो टेस्ट देने में गांधी जी पे 50 सवाल थे, हो ही नहीं रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हो रहा है, दांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट के फीचर्स में कंफ्यूजन हो रहा है, गांधी जी के क्रोनोलॉजी में दिक्कत आ रहा है। लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर टाइम में जब टेस्ट दे रहे होते हो और टेस्ट के दौरान जो आप जद्दोजहद करते हो, जब आप दिमाग लगाने लगते हो, जब आप सोचने लगते हो कि कैसे भी करके मुझे ये क्रैक करना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप एक्टिवली इंगेज होते हो कंटेंट के साथ, जब आप अपने दिमाग में स्कैन कर रहे होते हो कौन से पेज में क्या लिखा हुआ था, क्या सर ने क्या बोला था, क्या मैंने क्या नोट्स में लिखा था, वो स्कैनिंग के तहत एक एक्सपीरियंस आता है जो कि रूट्स के एग्जांपल की तरह आप देख सकते हो, जो मैंने रूट की एग्जांपल दी, जो आप खुद से जद्दोजहद कर रहे होते हो। फिर जैसे ही खत्म होता है टेस्ट, एग्जाम खत्म होता है, आप तुरंत आंसर की पे झपटते हो, तुरंत टेक्स्ट बुक पे झपटते हो और सब कुछ क्लियर हो जाता है और आप अपने सर पे मारते हो, यार मैं ये नहीं सोच पा रहा था। और उस वक्त आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है, उस वक्त आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है। और हम लोग पिछले 3 साल से अपने बच्चों को जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम जब स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट लेना, तो जब हम अगस्त सितंबर में मॉक टेस्ट लेते हैं तो बच्चे के स्कोर आते हैं 200 में 120, 130, लेकिन जब अक्टूबर तक उसी बच्चे के स्कोर 160, 170 आने लग जाते हैं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो लर्निंग का कंपोनेंट है उसमें जो सबसे बड़ी लर्निंग होती है वो मॉक टेस्ट से होती है, वो प्रैक्टिस टेस्ट से होती है। और ये जो मैं कह रहा हूं ये सिर्फ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या कॉमन सेंस से नहीं कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं डिफरेंट स्टडीज हैं, इसके डिफरेंट रिसर्चेस हैं
जब आप आगे एकेडमिक लाइफ पे जाएंगे तो आप बहुत सारे केस स्टडीज पढ़ेंगे, बहुत सारे एकेडमिक रिसर्चेस पढ़ेंगे जो हार्वर्ड करते हैं, आईआईटीज में होती हैं, MITs में होती हैं, तो आपको एक्सपोज होगा डिफरेंट सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस पे, तो उसमें आप ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। तो विद दिस आई कंक्लूड दिस होल सेशन एंड आई विल जस्ट आस्क कि अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है कि मुझे NTAC के लिए तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, तो यू शुड आस्क 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। और अगर ये 3 क्वेश्चन में किसी भी एक क्वेश्चन में यस नहीं है तो फिर आप NTAC की तैयारी मत करना। और इन तीनों क्वेश्चन में अगर तीनों यस है तो NTAC की तैयारी आपको करना चाहिए। और ये सिर्फ NTAC के लिए 3 सवाल नहीं है, किसी भी लाइफ में किसी भी घड़ी में आपको कुछ करना है तो ये 3 सवाल जरूर अपने आप से पूछिए। और इन 3 सवाल का आंसर अगर आपको यस मिलता है तो आप आगे बढ़ जाइए, आपको पर्पस में क्लैरिटी आता है। पहला सवाल है कैन यू डू इट, कैन यू डू इट। ये आपके पर्सनल पोटेंशियल की बात है, मतलब आप NTAC स्कॉलर बन सकते हो क्या? क्या आप NTAC स्कॉलर बन सकते हो? अगर इसका जवाब है यस तो ठीक है, फिर दूसरा सवाल पूछिए विल इट वर्क। पहला सवाल है कैन यू डू इट, दूसरा सवाल है विल इट वर्क। ये जो मैंने आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज बताया, अभी सर आके और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताएंगे। आप इस जो भी आपको स्ट्रैटेजीज बताई जा रही है, आप इसके ऊपर पास्ट के एक्सपीरियंस से जितने भी लोगों ने NTAC क्रैक किया है या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किया है, उनका अगर आप कॉमन चीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, इस प्रोसेस के तहत, जैसे मैंने आपको मॉक टेस्ट का प्रोसेस बताया, मैंने डेली प्रैक्टिस का प्रोसेस बताया, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो ये काम करता है, आपको पता चलेगा कि हाँ ये काम करता है, जो भी प्रोसेस आप चुनने वाले हो। तो विल इट वर्क, अगर इसका जवाब है यस तो लास्ट सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका आंसर यस है तो यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट। और जो तीसरा सवाल है वो है इज इट वर्थ इट, इज इट वर्थ इट, इज इट वर्थ इट। मतलब जो मैंने आपको बताया था व्हाई डू यू हैव टू बिकम एन NTAC स्कॉलर, जो इतने सारे रीजन बताए थे, वुड यू वांट टू बिकम अ नेशनल एसेट, वुड यू वांट टू बिकम अ नेशनल टैलेंट, वुड यू वांट टू get over with the fear of competition, would you want to expose to competition, would you really want to have this badge of honor, इन सब में आपको पता चलता है कि yes I want to do it। अगर ये जवाब आता है कि yes it is something which I have imagined, yes it is something which I want to be, this is my vision and I want to be an NTAC scholar, अगर इनका yes आता है तो this is called motivation in you and this is what will make you an NTAC scholar। Okay बच्चों, so I'll just open the stage for Himanshu sir will be here within a minute and he will continue the session. Thank you.